We'll start with next lecture. The next topic is reproductive system. Similar to our other body systems like digestive, circulatory, respiratory, sensory, that is your nervous, endocrine, as well as the last topic that we did, excretory system, reproductive system is also an essential part of our body system. Continuing on, even though we say that reproductive system is similar to other body systems, but it is a bit different from other body systems. Let's say digestive, circulatory, respiratory and all these body systems are essential for continuation of our own life. That means without those body systems, we will cease to exist. That means we can lose our life. But when we talk about reproductive system, it is not an essential component for our survival. That means if we lack or if you don't have reproductive system, it won't affect our current life. But why it is important for us? Because it helps in ensuring survival of the species. Such as, if we are talking about in simple language, then we all are living organisms, correct? But how did we come to be? Our forefathers, our progenitors gave birth to us. That's why we came to being. अगर हिंदी में कहें, हमारे पूर्वजों की वजह से आज हम जिंदा है या फिर सरवाइव कर रहे हैं. और ये हो क्यों पा रहा है? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एसेंशियल पार्ट है या फिर जो इंपॉर्टेंस है वो यही है. ये एक स्पीसीज को कंटिन्यू होने में हेल्प करती है, सर्वाइव होने में हेल्प करती है. द बेसिक वर्क ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑल्सो दैट हम हैं, हमारे बाद भी कोई होगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट of reproductive system. Over here we can have a look at it. The major function of reproductive system is to ensure survival of the species. It is not of the organism, it is about survival of the species, such as humans. अगर human reproduce करेंगे ही नहीं, what will happen? Human will cease to exist. Next, other systems like digestive, respiratory system work continuously to maintain homeostasis for survival of the individual. Homeostasis over here means basic requirement of life. Digestive, respiratory वैसे क्या है? हम जिंदा रह रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव की वजह से क्या होगा? हमारे वंश चलता रहेगा, हमारी प्रोजनी चलती रहेगी, स्पीसीज कंटिन्यू होती रहेगी. Okay. Normal functioning of reproductive system is essential for survival of the species or continuation of race through reproduction. यहाँ पे हमारे लिए एक 3 मार्कर बन जाता है. What is reproduction? Reproduction means to reproduce. It is a biological process by which an organism reproduces an offspring who is biologically similar to the organism. मतलब human will give birth to human. A plant will give birth to similar type of plant. यहाँ पे organism है, similar type के organism को give birth दे रहा है. Reproduction enables and ensures continuity of species generation after generation, as well as it is also the main feature of life on earth that facilitates evolution. Imagine this, अगर living organisms reproduce करेंगे ही नहीं, what will happen? Life will cease to exist. हम अर्थ को कहते हैं it is a living planet. Reason being, living organisms give birth to next generation offspring, और ये जो next generation offspring है coming generation को continue करते हैं. इसी वजह से अर्थ क्या है? लिविंग planet है, क्योंकि यहाँ पे organism survive कर पा रहे हैं. लेकिन अगर organism reproduce करेंगे ही नहीं, what will happen? जो लाइफ है अर्थ पे, जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी. साथ ही साथ रिप्रोडक्शन की वजह से इवोल्यूशन भी हो रहा है. बेस्ट एग्जांपल इज जो पहला ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रॉस्पर हुआ था या फिर ग्रो करा था, वो क्या था? बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बट उसने रिप्रोड्यूस करा, टाइम दर टाइम वो रिप्रोड्यूस करता गया. आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स वही सिंगल सेल बैक्टीरिया इवॉल्व होते होते क्या बन गया? हम, आप, पेड़ पौधे, जानवर, चिड़िया वगैरह ये सब बन गए. तो ये हुआ कैसे? रिप्रोडक्शन की वजह से.
तो याद रखिएगा रिप्रोडक्शन के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, फर्स्ट कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ एज वेल एज इट आल्सो हेल्प्स इन फैसिलिटेशन ऑफ इवोल्यूशन। इस स्पेसिफिक स्लाइड पे अगर हम बात करें यहाँ पे व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 3 मार्कर में, प्लस व्हाट इज रिप्रोडक्शन ये भी 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बेसिकली रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स या फिर 2 मोड्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये डिफरेंशिएशन किस हिसाब से है? ये डिफरेंशिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड है, गैमेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं या नहीं। गैमेट्स दैट इज जैसे कि स्पर्म, ओवा, प्लांट की अगर हम बात करें पोलन ग्रेन्स वगैरह, तो ये जो गैमेट्स हैं क्या ये गैमेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं या नहीं, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहा है। इस बेसिस पे रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने कितने कैटेगरीज में डिवाइड करा है? 2, असेक्सुअल, सेक्सुअल। पहले डील करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये किसमें देखा जाता है? ये ज्यादातर सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर्स में जैसे प्रोकैरियोट्स वगैरह हैं, और प्रोटोजोआन्स में देखने को मिल जाती है। इसकी खासियत क्या है? In this type of reproduction, only a single organism or single parent is involved, जहां पे एक ही पेरेंट से सिमिलर टाइप के ऑफस्प्रिंग्स ही प्रोड्यूस होते हैं। देख लेते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और सिंगल पेरेंट गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल एंड नो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड। किसमें देखने को मिल जाती है? इट इज ऑब्जर्व्ड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे एंड प्लांट्स। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, हम बेसिकली असेक्सुअल प्लांट्स की बात कर रहे हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ओके, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लगभग 6 सब टाइप्स हैं, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इंडिविजुअली एक एक को डील करेंगे। फर्स्ट वन इज बाइनरी फ्यूजन। यहां पे बाइनरी फ्यूजन का मतलब है स्प्लिटिंग या फिर डिविजन इन हाफ। लिटरली व्हाट इट मींस इज, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अ सिंगल पेरेंट स्प्लिट्स और डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स और सेल्स। ज्यादातर ये आपके जो कॉमन या फिर जो अंडर डेवलप्ड यूनिसेलुलर्स में देखने को मिल जाती है, सच एज बैक्टीरिया, एमीबा एंड पैरामीशियम। इसमें होगा क्या? In it, the parent divides into 2 daughter cells or organisms, and each daughter cell begins its life as a new individual. Example के तौर पे देख लेते हैं, साइड में आपको दिख जाएगा। Over here, this is a parent bacteria. अगर आप ध्यान से देखो, बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हो ये रहा है, विद वेरियस प्रोसेसेस इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स। एक सिंगल पेरेंट था, ये स्प्लिट हो गया इनटू 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स। दोनों की अगर हम बात करें, दोनों का शेप, साइज, फंक्शन, जेनेटिक सिमिलरिटी ऑलमोस्ट सेम है, तो इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? 2 डॉटर सेल्स। साथ ही साथ ये नीचे भी आपको एक एग्जांपल दिख जाइए, एमीबा का एग्जांपल दिख जाएगा। एक सिंगल सेल्ड एमीबा है, वो प्रोग्रेसिव होते होते आगे चल के क्या हो रही है? डिवाइड होके 2 डॉटर एमीबा में कन्वर्ट हो जा रही। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। यहाँ पे बाइनरी फिशन एज अ 3 मार्कर आ जाएगा। इसके डेफिनेशन को हम याद रखेंगे, ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल और ऑर्गेनिजम्स व्हिच लीड अ इंडिविजुअल लाइफ। यहाँ पे एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, बैक्टीरिया, एमीबा, पैरामीशियम। तो ये हो गया 3 मार्कर। उसके अलावा यहाँ पे प्री का भी एक क्वेश्चन बन जाता है, एमीबा, पैरामीशियम या फिर बैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, इट रिप्रोड्यूसेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऐसे कुछ दे सकते हैं। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन और ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। प्री में भी आ सकता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है। नेक्स्ट, बडिंग।
When you talk about budding, budding is usually seen in fungi as well as in hydra. Budding is also a asexual method of reproduction in which on the body of parent organism a small tube bud-like structure or nascent bud starts to grow. With passage of time, this bud starts to grow and gain maturity. After gaining maturity, it can separate itself from the parent body and start an individual life. Now this type of reproduction is known as budding. Simple language में अगर हम बात करें, budding में होता क्या है, parent body के ऊपर एक छोटा सा small bud like outgrowth grow करता है. नीचे दिख जाएगा हाइड्रा आपको, ये जो ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर ये हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा है. पेरेंट हाइड्रा के ऊपर ये छोटा सा ट्यूमर जैसा एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो ग्रो कर रहा है, ये है बर्ड हाइड्रा. समय के साथ क्या हो रहा है, ये आउटग्रो होकर साइज में इंक्रीज हो रहा है. धीरे धीरे जब ये मैच्योर हो जाएगा, पेरेंट बॉडी से ये सेपरेट हो जाता है. नाउ दिस टाइप ऑफ ग्रोइंग ऑन टॉप ऑफ पेरेंट बॉडी एंड सेपरेटिंग आउट ऑफ parent body to have a individual life is known as budding. Again, budding 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा as well as for pre में हमें क्या याद रखना है, इसके जो एग्जांपल्स हैं. तो वापस से देखते हैं budding क्या है. In this method, a small bud-like outgrowth gives rise to a new individual. ठीक, आगे बढ़ते हैं. Next method is spore formation. जब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की, दिस असेक्सुअल मेथड इज यूजुअली सीन इन फंजाई. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिख जाएगा मशरूम इज एन बेस्ट एग्जांपल फॉर फंजाई. इसमें होता यह है, जब ये पेरेंट फंगस या फिर मशरूम मैच्योर हो जाता है, इसी के अंदर से स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं. स्पोर क्या है, दानेदार स्ट्रक्चर्स होती है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होती है, जैसे रवा सूजी के जैसे दाने होते हैं ना, बस वैसे ही ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं. जब पेरेंट बॉडी मैच्योर हो जाती है, ये स्पोर्स क्या होते हैं, पेरेंट बॉडी से रिलीज आउट हो जाते हैं, बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे. बाद में यही स्पोर्स मैच्योर होने के बाद जर्मिनेट होते हैं और ये आउटग्रो होने के बाद वापस से नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग को ये गिव बर्थ करते हैं. इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन. देख लेते हैं. इट इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट हैपेंस इन फंजाई. In this, the parent generates thousands of spores. यहाँ पे कुछ नंबर फिक्स नहीं होता है, thousands of spores depending on parent size and depending on type of organism. Thousands of spores which individually grow into next generation offsprings. यहाँ पे ये spores हैं क्या? These are microscopic and round in shape and grow in suitable condition. दानेदार होते हैं, रवा के दाने जैसे. यहाँ पे again 3 मार्कर के लिए हमें क्या याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है प्लस एग्जाम्पल में क्या रहेगा, मशरूम. साथ ही साथ ये हमारे लिए प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख जाएगा फिगर में, माइसेलियम. इस चीज को याद रखिएगा, ये टिडबिट फैक्ट्स में आ जाएगा. माइसेलियम इज आउटग्रोथ ऑफ फंगस. ज्यादातर मशरूम जैसे फंगस में ये देखने को मिल जाती है. फिलामेंट जैसे होते हैं, रेशे जैसे ही होते हैं माइसेलियम. तो ये आपको आ जाए, ये आपके एक प्री क्वेश्चन में जाए. माइसेलियम किस में देखने को मिल जाती है, फंगस में देखने को मिल जाती है, मशरूम वगैरह में देखने को मिल जाती है. ये फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट रिप्रोडक्शन मेथड इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन ज्यादातर जो एल्गे है उसमें देखने को मिल जाती है. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख जाएगा, स्पायरोगायरा, जिसे कि हम ग्रीन एल्गे या फिर ग्रीन ऊल भी कहते हैं. बाय द वे, स्पायरोगायरा एक बायोमार्कर भी है. ये ज्यादातर आपके फ्रेश वाटर्स में ही पाया जाता है, साथ ही साथ नॉन पॉल्यूटेड फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जैसे नदी में, झरनों के पानी में पाया जाता है. ठहरे हुए पानी में कभी पाया नहीं जाएगा. एनीवेज, ये आपके लिए एक प्री क्वेश्चन बन गया. स्पायरोगायरा के अल्टरनेट नेम्स क्या है, ग्रीन एल्गे कहते हैं इसे, या और साथ ही साथ इसे ग्रीन ऊल भी कहा जाता है. ये इसका डायग्राम आपको दिख जाएगा, यहाँ पे स्पायरोगायरा का डायग्राम है. और साथ ही साथ ये क्या है, बायोमार्कर है. कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर, साथ ही साथ बहते हुए फ्रेश वाटर में, ठहरे हुए पानी में नहीं पाया जाता है. दैट मीन्स रिवर, स्प्रिंग में पाया जाएगा. एनीवेज, देखते हैं फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है. In this, the parent organism splits into several parts and each part grows into a new individual. फ्रेगमेंटेशन में होता है, ये जो स्पायरोगायरा है,
ये एक रिबन जैसे होता है, फिलामेंट जैसे होता है, थ्रेड जैसे होता है। जो पुराने, जो अगर आपने देखे हो जो कैमरा के रोल्स आते थे, नेगेटिव जो रोल्स आते ना कोडैक के कैमरास, बस वैसे ही जो रोल्स आते, बस जो स्पाइरोगैरा है वैसे ही फिलामेंट के रोल जैसा ही होता था। नाउ व्हाट हैपन इज द स्पाइरोगैरा विल डिवाइड इट इनटू स्मॉल पीसेस और फ्रैगमेंट्स। बाद में यही फ्रैगमेंट्स, यही पीसेस क्या कर जाते हैं, आउटग्रो हो जाते हैं या फिर इलोंगेट होके इंडिविजुअल फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी टाइप के रिप्रोडक्शन मेथड को हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। तो वापस देखते हैं फ्रैगमेंटेशन क्या है। It is a process that is seen in Spirogyra, where the filamentous Spirogyra gets divided into small pieces or fragments, and later on these pieces regrow into individual filaments. Again 3 marker plus pre के हिसाब से हम इसे मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट असेक्सुअल मेथड, रीजनरेशन। वैसे देखा जाए रीजनरेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर फ्रैगमेंटेशन टेक्निक। द ओनली डिफरेंस इज फ्रैगमेंटेशन में क्या होता था, ऑर्गेनिज्म खुद से डिवाइड हो रहा था और रीग्रो हो रहा था फिलामेंट में, लेकिन रीजनरेशन में ऐसा नहीं होता है, ऑर्गेनिज्म खुद से डिवाइड नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ये ज्यादातर प्लैनेरिया में देखने को मिल जाता है। नीचे आपको प्लैनेरिया का फिगर दिख जाएगा। ओके, सो होता ये है, प्लैनेरिया का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। जब भी ये प्लैनेरिया एक्सीडेंटली 2-3 पीसेस में कट ऑफ हो जाता है, एक्वेटिक होने की वजह से मछलियां वगैरह इसे अटैक करते हैं खाने के लिए, तो अगर मान लेते हैं ये 2-3 पीस में कट हो जाता है, तो होगा ये, जो इसके डिवाइडेड पीसेस हैं, सेपरेट पीसेस हैं, ये रीग्रो हो जाते हैं, रीजनरेट होके इंडिविजुअल प्लैनेरिया बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, साइड पे जो फिगर है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्लैनेट, जो पेरेंट प्लैनेरिया है। अब ये जो पेरेंट प्लैनेरिया है 3 पीसेस में डिवाइड हो गया है, हेड रीजन, टेल पोर्शन और टॉर्सो। सर, टेल वाला हिस्सा और टॉर्सो या फिर जो धड़ वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा हेड रीजन से रीग्रो होके एक इंडिविजुअल प्लैनेरिया बन गया, टेल पोर्शन से रीग्रो होके एक इंडिविजुअल प्लैनेरिया बन गया है, और जो मिड पोर्शन या फिर जो टॉर्सो रीजन था वो रीजनरेट होके एक इंडिविजुअल प्लैनेरिया बन गया है। So this is an example of regeneration. वापस से देखते हैं regeneration क्या है। It is a asexual reproduction in which simple organisms can regenerate from their parts which gets accidentally cut off. ठीक, इस चीज पे हम ध्यान देंगे, एक्सीडेंटली, वो खुद से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर एक्सीडेंट से वो अलग अलग पीसेस में डिवाइड हो गया तो उसके बॉडी पार्ट्स रीग्रो कर सकते हैं। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू फ्रैगमेंटेशन, खाली अंतर क्या है, फ्रैगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म खुद डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली अगर अलग हो गया तो वो रीग्रो करेगा। अगेन डेफिनेशन को हम याद रखेंगे प्लस एग्जांपल को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, vegetative propagation, last method of sexual reproduction. When we talk about vegetative propagation, it is usually seen in higher plants. Higher plants, जब हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं, अगर आपको याद होगा, हम टिश्यूज जब पढ़ रहे थे, सॉरी जब हमने प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने कुछ पढ़ा था फेनोरगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, फिर वहां पे भी हमने डिवीजन करा था जो आपके ब्रायोफाइलम, थैलोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, बस उसी की हम बात कर रहे हैं। जो ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेसिफिक या फिर डेवलप्ड लीफ, रूट, स्टेम नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लोअर प्लांट्स। जैसे कि ब्रायोफाइलम वगैरह हो गए, ये लोअर प्लांट्स हैं, उनके पास प्रॉपर लीफ, रूट वगैरह नहीं है। लेकिन जिन प्लांट्स में प्रॉपर लीफ है, रूट है, स्टेम है, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हायर प्लांट्स। देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली सीन इन हायर प्लांट्स वेयर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स। अगेन जब हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट में टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, 6 पार्ट्स हैं। वापस से, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। इसमें से फ्लावर, फ्रूट और सीड को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट।
क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, उसमें गैमेट्स होंगे, गैमेट मीट करेंगे तो सीड बनेगा, तो ये भी सेक्सुअल हो गया। सीड के चारों तरफ फ्रूट होता है, तो इस वजह से सीड फ्रूट एंड फ्लावर बन जाते हैं हमारे लिए क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर बच जाता है स्टेम, रूट और लीफ। ये असेक्सुअल पार्ट होते हैं या फिर वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, या फिर हम इन्हें सोमैटिक पार्ट भी कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता यह है, जब प्लांट के सोमैटिक पार्ट्स या फिर वेजिटेटिव पार्ट्स की वजह से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट मींस रूट, स्टेम और लीफ की वजह से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं, वन एंड द सेम थिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वापस से देखते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन in higher plants where vegetative parts of the plant gives rise to offsprings। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे रूट के लिए एग्जाम्पल आ जाएगा जिंजर, ठीक, स्वीट पोटैटो, जो डलिया के जो फूल होते हैं वो आपके लिए एग्जाम्पल आ जाएंगे कि हाँ रूट से भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। वहीं पे जब हम स्टेम की बात करते हैं, पोटैटो आपको पता ही होगा, पोटैटो या फिर ट्यूबर इज अ मॉडिफाइड स्टेम। रोज ये भी स्टेम से ग्रो करता है, शुगर केन स्टेम से ग्रो कर सकता है। लीफ की अगर हम बात करें, ब्रायोफाइलम, जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख जाएगी, ये ब्रायोफाइलम का एक सब टाइप है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस लीफ के एजेस में आपको ये छोटे छोटे बर्ड्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बर्ड्स आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग या फिर नेक्स्ट जनरेशन प्लांट बनेगा। ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जांपल है। तो वापस से देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में देखने को मिलती है, हायर प्लांट्स में। और होता क्या है इसमें, यहाँ पे जो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, रूट, स्टेम और लीफ, उनकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे हम इसे 3 मार्कर के हिसाब से मार्क करेंगे, प्लस इसके लिए प्री के हिसाब से भी मार्क करेंगे। प्री में इसके एग्जाम्पल्स तो आ ही जाएंगे, उसके अलावा एग्जाम को थोड़े बहुत मॉडिफाइड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सच एज डैश टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज सीन इन पोटैटो, ठीक, स्टेम वाला, रूट वाला, लीफ वाला, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ब्रायोफाइलम इज अ एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लीफ मोड ऑफ ये, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम एग्जांपल्स पे ध्यान देंगे। रूट के लिए अगेन एग्जांपल वापस से रिकॉल कर लेते हैं, जिंजर आ जाएगा, टर्मरिक आ जाएगा, डालिया आ जाएगा, स्वीट पोटैटो आ जाएगा। स्टेम के लिए क्या एग्जांपल रहेगा, पोटैटो, मनी प्लांट, रोज, शुगर केन रहेगा। लीफ के लिए क्या रहेगा, ब्रायोफाइलम। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स स्लाइड में दे रखे हैं, जैसे ये आपको दिख जाएगा स्ट्रॉबेरी, वाटर लेटस, ये आपको दिख जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे क्रिसैंथम है, ये जिंजर है, पोटैटो है, ये एग्जांपल्स हैं, यू कैन गो थ्रू इट। लेकिन इसे प्री और मेंस के हिसाब से मार्क करेंगे। विद दिस वी आर डन विथ योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दिस कंक्लूड्स योर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे अलग एक टॉपिक पे डील करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।